कुछ लास्ट पॉइंट में डाउट है किसी को, कुछ समझा नहीं ऐसे? ठीक है, आई थिंक टेल विच आर द टाइप्स ऑफ WBCs. Types of WBC: granulocytes and agranulocytes. Which are the types of granulocytes? Eosinophil, yes. And which are the types of agranulocytes? Now third right, thrombocytes. Thrombocytes or platelets. आपका डेली एक ही लेक्चर होता है ना? क्या दो? एक दो हो जाएगा? अच्छा, आज एक ही है। तो जब दो रहते तो टाइमिंग कैसे रहता है? अच्छा, ओके ओके ओके। Thrombocytes or other name platelets. Okay. Now as like WBCs are nucleated or enucleated? Nucleated. RBCs? Enucleated means? Same. Platelets also without nucleus. They are enucleated. Nucleus absent. Where is the production of RBCs and WBCs? Same here. Platelets also produced by red bone marrow, but there are some specialized cells called, say written, megakaryocytes. These are the cells present in red bone marrow which produce platelets. Right there. They are produced by okay, Then what is the normal count of RBC? What is the normal count of RBC? देखिए बताइए, नहीं आता तो हाँ एग्जैक्ट कितना है देखो, मेल्स पे कितना है? 5.128 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर. WBCs? WBC. And what is the number here? 2.5 to 4.5 lakhs per cubic millimeter of the blood. Right there. Normal count. Increased number of RBC is called increased number of RBC. Increased number. देखिए बताइए, अब ये तो याद रखना पड़ेगा. Polycythemia. And decreased number of RBC. Increased number of WBC. Increased number. Leukocytosis and decreased number leukopenia. Similarly, if the decrease in number of platelet is called thrombocytopenia. Right there. Decreased number of platelet called thrombocytopenia. When the word penia decrease. What is the function of platelets? Blood clotting. So what will happen in thrombocytopenia? There will not be blood clotting. In other words, that causes internal bleeding, that is hemorrhage. Right there. It results into internal bleeding or hemorrhage. So what is function of platelet? Important is blood, even as well as they seal the ruptured blood vessels. Right there. Second function, they seal ruptured blood vessels. And what is next function? They secrete. It is vasoconstrictor. What is the meaning? Vaso means blood vessel, constrict means contract. So contraction of blood vessels so that bleeding is prevented or reduced. That is the function of platelet. For example, when there is any injury, at that time bleeding is restricted, limited because of the function of serotonin. It is vasoconstricted and it is secreted by platelet. So it there. Next, platelets secrete serotonin. बहुत ही डिटेल है एक्चुअली, बहुत सारे पॉइंट्स है. एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ही कम दिया है. हाँ यस, थोड़ा सा नंबर अलग है, बता दूँ इसके बारे में. हम थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ने वाले हैं. हाँ, वन सेकेंड. टेल व्हाट इज इंट्रिंसिक पाथवे. Suppose if there is damage to the blood vessel, then bleeding takes place, but it does not take place continuously, it stops. That is nothing but called as blood clotting. So if there is damage to the blood vessel, then it is called as intrinsic pathway. And what is extrinsic?
damage not to the blood vessel but tissue around the blood vessel, then it is called as extrinsic pathway. Okay. So there are many factors, near about 13 factors are there, that is 1 to 13, but they are totally 12. Why? Because factor 6 is unstable. So factor numbers are written in Roman letters like this. Is 1 to 13. Factors 1 to factor 13. So how many total factor? Actual 13, but they are not 13, they are 12 because factor 6 is unstable. Right? Totally there are 12 clotting factors. Totally there are 12 clotting factors. Factor 1 to 13. To 13. Factor 6 is unstable. ऐसा सब चक्कर है, अभी इतना डिटेल आपको है नहीं, बट क्या लिखो मत, खाली देख लो ऐसा भाई नहीं। क्या है फैक्टर 1? ये तो ऑलरेडी हमने सिखाया। किधर है फाइब्रिनोजिन? फाइब्रिनोजिन कहाँ होता है? अरे भूल गए नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, देखो प्लाज्मा में देखो पोलिक, हाँ देखो सब लोग, सबको आना चाहिए। वास्ट है बहुत ज़्यादा सिलेबस है, देखो जरा धीरे धीरे। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा उसमें वाटर के बाद प्रोटीन्स लिखे थे, है ना? तो प्रोटीन्स में कौन है? फाइब्रिनोजिन। देख लो बराबर, लास्ट लेक्चर में हुआ था, देख लो आराम से, धीरे धीरे चलते। तो सो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर 1। व्हाट सेकेंड? प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 2 ये भी हुआ है, किधर है? प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ठीक, नेक्स्ट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट इज अ केमिकल सिक्रेटेड बाय टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड फैक्टर 3। फैक्टर 4 कौन है? कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 लैबाइल फैक्टर बोलते हैं उसको। अभी 6 नहीं, क्यों? अनस्टेबल है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक। फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको दूसरा नाम है। फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। उसके बाद 11 अगेन, इसके 2 टाइप्स होते हैं, और 12 में हैगमन फैक्टर बोलते हैं उसको। नहीं ये ज़रूरत नहीं, ये मेडिकल का पार्ट है, ये छोड़ दो, कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जस्ट बताया मैंने, अब इसमें और थोड़ा डिटेल है। एक्चुअली इसमें और डिटेल है, इतना मत देखो खाली डायरेक्टली। ये देखो ऐसे होते ही चलता है। आपके बुक में देखो बहुत शॉर्टकट में है, मिला क्या? लेकिन उतना ही पढ़ेंगे अभी, ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसे मेडिकल में जाके पढ़ना है। ओके, छोड़ दो तो खाली जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने पॉइंट की तरफ बस इतना ही देखो। बताओ क्या हुआ है? डैमेज टू द ब्लड वेसल, देन व्हाट हैपेंस? क्या लिखा है सर आगे? कैस्केड। ये सर क्या देखते हैं पहले? कैस्केड ऑफ, कैस्केड मतलब जो एक से दूसरे में कन्वर्ट होते चला ना, दैट इज कॉल्ड एज कैस्केड। देन क्या हुआ? इनएक्टिव फैक्टर 10 को किस में कन्वर्ट किया है? देन व्हाट हैपेंस? वो क्या करता है? जो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन है उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या करता है? प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजिन है इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फिर उसके बाद क्या होता है? देन सपोज ए डैमेज ब्लड वेसल है, दिस फाइब्रिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसका एक मेश या नेट बनता है। वेयर? टू द इंज्योर्ड साइड, जहाँ ब्लड वेसल रप्चर हुई है उसके ऊपर ये फाइब्रिन क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स।
देन जो ब्लड बाहर निकला है उसमें जो ब्लड सेल्स थे दे गेट ट्रैप्ड हियर, फॉर एग्जांपल आरबीसीज, और उसका ये एक थिक प्लग बनता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्लॉट. सो व्हाट इज क्लॉट? वंस अगेन, जहाँ टिश्यू रप्चर हुई है, ब्लड वेसल रप्चर हुई है, उसमें क्या होता है, ये फाइब्रिन का मेश नेटवर्क बन जाता है और उसके अंदर कौन ट्रैप होते हैं? आरबीसीज, जो डब्ल्यूबीसी बाहर सब गए वो सब ट्रैप होते हैं. तो क्या करते हैं सब, ये जो रप्चर्ड ब्लड वेसल को बंद कर देते हैं. तो इसलिए आपने नोटिस किया हुआ, आपको अगर कुछ इंजुरीज हुए और ब्लीडिंग हो रहा है और उसको आप वापस धो रहे हैं तो वापस ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, लेकिन आपको जेंटली यहाँ प्रेस करके रखेंगे तो अपने आप ब्लीडिंग स्टॉप होता है. क्या होता होगा? ब्लड क्लॉट बन जाता है. तो जो क्लॉट बना है उसको हटाने का नहीं, इसको लीव एज इट इज, तो क्या होगा, ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप होगा. लेकिन आप वापस उसको निकालते रहेंगे, अगेन ब्लीडिंग विल स्टार्ट. दैट इज अ सिंपल थिंग. अंडरस्टूड? सेम ईयर, बाकी वो ज़्यादा नहीं हुआ है. अगेन ईयर डैमेज टू टिश्यूज, उससे क्या बनता है, देन अगेन सेम प्रोसेस, ब्लड क्लॉट बनती है. सो ब्लड क्लॉट इज फॉर्म इन बोथ केसेस, टिश्यू डैमेज एज वेल एज ब्लड वेसल डैमेज. सिंपल. आज के क्वेश्चन अप टू ईयर. बस यही सब लिखना है, क्या याद रहेगा? याद रहेगा ना, यही फॉर्मेट में लिखना है. क्या बताओ, लिखना है? चलो पढ़ते देखते हैं. First of all, see the definition. What is clotting? Process of liquid blood into solid form. लिखो. मतलब एक 2 मार्क के वगैरह नोट आता है बोर्ड में, ये सब दोनों पढ़ रहे हैं हम, स्टेट बोर्ड एज वेल एज एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे. Then written 2 processes, which one? Intrinsic as well as extrinsic. That already studied. Then clotting factor C. Interaction of various substances called clotting factors by a stepwise or cascade mechanism. They are near about 12, 1 to 13. Which one is inactive? 6 is inactive. Okay. Now. थोड़ा सा एडिशनल दिया उन्होंने. चलो लिखो, बताता हूँ. राइट देयर. देखो सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं. चलो राइट. थ्रोम्बोप्लास्टिन. राइट. नेक्स्ट. Thromboplastin helps in the formation of enzyme थ्रोम्बोप्लास्टिन हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब ये लिखो, फैक्टर 10. थ्रोम्बोप्लास्टिन के ब्रैकेट में लिखो फैक्टर 10. हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम. कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिनेज. थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज. सामने ये देखो, किसका है फोन? ले लो. अच्छा हाँ हाँ आराम से. तो जो फैक्टर 10 बनाता है वो पहले क्या करता है? कौन सा एंजाइम बनाता है? प्रोथ्रोम्बिनेज. वो क्या करता है? ये देखो क्या लिखा है, इनएक्टिवेट्स हेपेरिन. व्हाट इज हेपेरिन? हाँ, वो एंटी कोएगुलेंट था, मतलब प्रिवेंट्स क्लॉटिंग. लेकिन उसको अभी हमें क्या करना है? इनएक्टिव करना है ना, तो क्या होगा? क्लॉटिंग होगा ही नहीं. तो पहले हेपेरिन को इनएक्टिव करता है कौन सा एंजाइम? प्रोथ्रोम्बिनेज. लिखो प्रोथ्रोम्बिनेज. आगे लिखो, दिस एंजाइम इनएक्टिवेट्स हेपेरिन. This enzyme inactivates heparin and also converts. क्या लिखा है? ये तो आपने चार्ट में, टेबल में देखो. फैक्टर 8 देखो सब लोग, देख लो चार्ट, टेबल देखो वापस. फैक्टर 10 देखो क्या कर रहा है. बोलो वो टेबल देखे. रुको जरा वापस एक बार देखते हैं. टेबल देखो वापस, वो जो अभी लिखा था वो. खाली इंट्रिंसिक का देखो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंट्रिंसिक पाते में क्या लिखा है? डैमेज टू द ब्लड वेसल. इंट्रिंसिक में बराबर ना. उससे क्या होता है? कैस्केड मतलब क्या? एक से दूसरा कन्वर्ट होते होते आगे आते हैं. चलो नेक्स्ट. उससे
उसके बाद हाँ, फिर ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो फैक्टर 10 है, उसको क्या किया जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म। वो क्या करता है फिर, एक एंजाइम सेक्रेट हेल्प करता है, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिनेज। वो क्या करता है, जो ऑलरेडी ब्लड में था एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन उसको इनएक्टिव करता है ताकि क्लॉटिंग हो जाए। फिर क्या करता है वो तो लिखा है उधर, क्या, कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं और उसके अंदर ब्लड सेल्स ट्रैप होते हैं और क्लॉट बनता है। सिंपली वही सेम लिखा है। ओके, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स क्या लिखा, सो ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजन इनटू एंड फाइब्रिन फॉर्म्स, ये देखो, मेश इन विच प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड, अदर कौन से, WBCs RBCs ट्रैप टू फॉर्म द क्लॉट। सिंपल, ये लिखना याद रहेगा, वो सब टेबल में है एक्चुअली, देखो तुम्हारी मर्जी। वही वन सेकेंड, चलो, प्रोथ्रोम्बिन किस में कट हो गया, थ्रोम्बिन, बिकॉज ऑफ फैक्टर 8 या प्रोथ्रोम्बिनेज। उसके बाद थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन, यस, सोल्यूबल फाइब्रिनोजिन इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करता है, फॉर्म्स मेश एंड इन दैट ब्लड सेल्स गेट ट्रैप्ड व्हिच फॉर्म्स अ प्लग दैट इज कॉल्ड एज क्लॉट। बस ये इसमें लिखना है तो लिखो, अदरवाइज रिमेंबर। और इसमें से अगर एक भी फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, सिंपल इंजुरीज भी होते हैं तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाता है, पर्सन विल डाई इन दिस कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, जो फैक्टर कम है उसके इंजेक्शन देते हैं, जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट देते हैं, अदरवाइज पर्सन विल डाई। समझा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मालूम है ना आपको, डेंगू में वगैरह क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो क्या होता होगा पेशेंट को, वीकनेस तो दूर की बात है, वो तो अलग छोड़ो, वीकनेस सब डिजीज में आता है, लेकिन मेन क्या होता है, प्लेटलेट कम हो गया तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है एंड पर्सन विल डाई। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लीवर, किडनीज, इनमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और उससे डेथ होती है। इसलिए हम पेशेंट को या तो ब्लड देते हैं या तो रेडीमेड प्लेटलेट्स देते हैं उसमें से निकाल के, अदरवाइज पेशेंट विल डाई। तो डेंगू मलेरिया में यही प्रॉब्लम होता है। उन्हें देखा होगा, प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्लॉटिंग से डेथ, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग से डेथ हो जाती है लोगों की। चलो ठीक है, हो गया। दिस इज अबाउट किसके बारे में, ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स, एक सिंपल पॉइंट। तो आई थिंक जनरल है, मुझे लगता है सबको मालूम है। चलो नो, इन बर्न बेस इज नॉट, इन बर्न देयर इज नो ब्लीडिंग, इट इज एक्चुअली इज अ डैमेज टू द टिश्यूज, सो टिश्यूज बर्न एक्चुअली, सो देयर इज नो, when blood vessels rupture then bleeding starts. How does internal bleeding happen without any injury? Because of absence of clotting factors. If clotting factors are absent, then heparin effect is reduced, heparin, and then that is bleeding starts. What is heparin? Which Prevents clotting. So when heparin is neutralized, what will happen? Bleeding will take place, so that results into injury. So in short, these clotting factors and all maintain what we can say, that is normal blood flow, and if anything changes in these clotting factors, then naturally the bleeding starts inside the blood vessel or inside body organs. Blood vessels rupture literally and then bleeding starts. So next, what is next, blood group. Tell everyone what is antigen and what is antibody. Simple words में these are the proteins present on, क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये RBC है, इसके ऊपर एक एंटीजन है, उसका ही नाम क्या है, ए एंटीजन। और जो प्लाज्मा होता है सीरम, उसके अंदर एंटीबॉडी है, उसका नाम क्या है, एंटी-बी एंटीबॉडी। क्या समझा, वंस अगेन, आरबीसी है, उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, एंटीजन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए ब्लड ग्रुप, उसके सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए, लेकिन प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी-बी एंटीबॉडी, बी नहीं बोलने का है, एंटी-बी एंटीबॉडी होती है। देन व्हाट इज बी ब्लड ग्रुप, अब आसान है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन, और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी-ए एंटीबॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज बी ब्लड ग्रुप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन है, कौन, लेकिन प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी नहीं है,
then it is called as AB. And what is O blood group? O actually here 0 है, मतलब RBC के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं है, that's why it is O0. So no एंटीजन, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी, कौन से? एंटी ए एज वेल एज एंटी बी. तो बताओ ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड कर रहा है? एंटीजेन्स, बराबर ना. देखो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी, दोनों नहीं है तो ओ, और दोनों है तो ए बी, लाइक दैट. कितना समझा? अब ये वाला टेबल देखो ऐसे है, ये तो बाहर करना पड़ेगा. ए कैन डोनेट टू एंड कैन रिसीव फ्रॉम ए एंड ओ. बी में कैन डोनेट टू बी एंड ए बी, कैन रिसीव फ्रॉम बी एंड ओ. ए बी क्या करेगा? कैन डोनेट टू ए बी बट रिसीव फ्रॉम ऑल, तो यूनिवर्सल और रेसिपिएंट. लास्ट वन ओ कैन डोनेट टू ऑल, कैन रिसीव फ्रॉम ओनली ओ, दैट्स व्हाई यूनिवर्सल डोनर. आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर. पूछो बंदा, ये तो आई थिंक ये रिपीट है. नेगेटिव दूसरा पॉइंट है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट. इतना समझा? ये कुछ चाहिए आपको क्या? बात भी बताएं, ये थोड़ा सा एक्चुअली 12 से रिलेटेड है. आप लोगों को मालूम है कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह? नहीं, स्टेट बोर्ड वालों को मेंडल्स लॉज मालूम है ना? तो बहुत सिंपल है. अगर ये समझो दोनों कैपिटल टी है कैपिटल टी, तो कौन सा प्लांट होता है? टॉल प्लांट. तो यही हो गया. तो दोनों कैपिटल ए कैपिटल ई ने मतलब ये ब्लड ग्रुप. लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो कौन सा प्लांट होता है? वो भी टॉल ही होता है. ये यहाँ हुआ है, ये देखो, यस हेट्रोजाइगस. तो सेम यार, इट इज हेट्रोजाइगस. ये बोल सकते हैं आप लोग. कैसे हुआ ये? एक कैपिटल ए और दूसरा वो वाला जीन है, लेकिन है क्या है? ए ब्लड ग्रुप. क्यों? इट इज लाइक दिस, डोमिनेंट है. तो कौन डोमिनेंट है? ए इज डोमिनेंट ओवर ओ, दैट्स व्हाई. अब सेम हियर, कौन सा ब्लड ग्रुप? इधर दोनों है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप है. ए बी जीन और बी बी, देन इट इज ए बी. और यहाँ क्या हुआ है? दोनों ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप. समझा? लेते ना. चलो, आपको मालूम है क्रॉस वगैरह करते हैं? ले लो एक एग्जाम बताता हूँ. पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप लेना है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए. और दूसरे पेरेंट का है, लिख दो, लिख दो. वन पेरेंट का ये है, दूसरे का ये है. तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे चिल्ड्रेन, उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? ये कैलकुलेट करके बताओ. मतलब ये जरा इक्वेशन वगैरह देख के बताओ ना, कैसे ट्राई करेंगे. ट्राई करो. So would you switch off the light? ये लाइट जरा स्विच ऑफ करना है. ये वाला फर्स्ट. किसको मालूम है? भूमिका मैम, उनका फर्स्ट लाइट ऑफ करना है. कौन सा बटन है? आज है कोई? मुझे तो पता आप भूलोगे ना. आज मुझे पता नहीं है. हाँ, ये सर एक ही ठीक है, लड़की चलो. जो फर्स्ट बेंच पे बैठी है. ट्राई करो, क्या पॉसिबिलिटीज है? बोलो सब लोग, कैसे किया? ऑल, सभी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है. कैसे? एक जीन हो गया, दूसरा राइट. इधर ये दोनों क्रॉस होंगे तो याद है क्या चेकर बोर्ड वगैरह बनाते हैं? तो इसमें क्या हो गया? आई ए आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया. हियर
बी ब्लड ग्रुप हियर, और इधर। तो मतलब बच्चे में चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, एक ही बच्चे में नहीं मतलब। अच्छा जो बच्चा होगा उसमें चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, सो दैट इज पॉसिबल। तो आप पेरेंट का ब्लड ग्रुप और अपना ब्लड ग्रुप चेक करके देख लो, पता चलेगा आप लोगों को क्या कैसे है। दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो दूसरा। और तुम्हारा कौन सा है? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसमें से कौन से भी दो पेरेंट ले लो, दूसरी चाहिए तो ट्राई करो। ये सब है आपको 12th में थोड़ा ये समझाना चार्ट। ये था ना आपको, था क्या कि नहीं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस वगैरह सब वही है। एसएससी बोर्ड में भी था ना? हाँ, इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये वापस आपको 12th में है। हाँ। अगर एक पेरेंट का बी और एक पेरेंट का ओ, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोच के बताओ, ले लो ना। ओ भी हो सकता है। हाँ देखो ना, ट्राई करो। एक पेरेंट का बी ब्लड ग्रुप है, देखो लिखो, वन पेरेंट हैविंग बी ब्लड ग्रुप और दूसरे का ओ, लिखो और बताओ। तो इसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? इसके लिए हमें ऐसे लेना पड़ेगा, रुको क्या बोले, एक पेरेंट का बी, तो बी के लिए हमें दो पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं। एक तो ये हो गई पॉसिबिलिटी राइट, एक कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। और दूसरा समझो ये कौन सा है? ओ। कैसे हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? सीधा ऐसे कैलकुलेशंस करने, पता क्या होगा, इधर क्या होगा, आई बी आई ओ, इधर सेम दूसरा भी होने वाला है 50%, या तो बी हो सकता है या तो ओ हो सकता है, समझा? एक इसमें अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो, लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, ये भी बी ब्लड ग्रुप है ना, अब क्या होगा बताओ? सभी बी होंगे, ऑल चिल्ड्रेन आर विद बी ब्लड ग्रुप। लेकिन यहाँ तो इसके ऊपर डिपेंड है, हम ये पेरेंट्स में या तो ये है कि ये, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आने वाला है। सभी बी वाले रहेंगे क्या कई बी और वो वाले रहेंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द दिस वन, जीन्स डिफरेंट, दे द जीन्स, ये जीन्स होता है, समझा? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कौन सा है? पॉजिटिव नेगेटिव, लिखो, दैट इज कॉल्ड एज आरएच ब्लड ग्रुपिंग। मालूम है ना आरएच, नाम सुना है क्या आरएच? ये देखो इधर आ गया, हाँ बराबर करेक्ट, आरएच लिख दो, आरएच ब्लड ग्रुप। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है? आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी। इसके साथ अगर आरबीसी के ऊपर और एक एंटीजन होता है आरएच एंटीजन, तो इसे हम बोलेंगे करेक्ट ए पॉजिटिव। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और ये डी एंटीजन है, आरएच एंटीजन नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम? ए नेगेटिव। सिंपल। वंस अगेन, आरबीसी के ऊपर और एक एंटीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज आरएच एंटीजन। ये अगर होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता है तो निगेटिव। तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो जाएंगे? 8 ब्लड ग्रुप, सबके पॉजिटिव सबके निगेटिव, समझा? लिखो, आरएच ब्लड ग्रुपिंग इफ
RH एंटीजन और D एंटीजन, if RH antigen or D antigen is present on the RBC, then it is called as RH positive. And if this antigen is absent, or if RH antigen is absent, it is called RH negative. चलो नेक्स्ट, अभी इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है देखते हैं, शायद आपको मालूम रहेगा आपको। देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल RR मतलब पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप, ये जीन्स है। जैसे हमने देखा था अभी IA होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप ना। उसी तरह अगर कैपिटल R जीन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, पॉजिटिव, और स्मॉल RR है तो नेगेटिव। सपोज फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर नेगेटिव, तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, बोलो सब लोग। फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसमें से कैपिटल R और दूसरा, और इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है, कौन डोमिनेंट है, पॉजिटिव, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे को समझो, वन सेकेंड, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कैपिटल R, मदर का नेगेटिव, स्मॉल r जीन्स है, तो बच्चे का ऑलवेज क्या रहेगा, कैपिटल R स्मॉल r, और क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिकॉज कैपिटल R इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, यानी पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर नेगेटिव, लाइक दिस। ये कौन सा प्लांट है, कैपिटल T स्मॉल t, कौन सा प्लांट है, टॉल। क्यों टॉल, यस इट इज डोमिनेंट, सेम ईयर, पॉजिटिव डोमिनेंट और नेगेटिव, लिख दो। इफ फादर इज RH पॉजिटिव, कौन नेगेटिव है अपने यहाँ, अच्छा तो कोई प्रॉब्लम, टेंशन मत ले लो। हाँ, इफ फादर इज RH पॉजिटिव, दैट इज कैपिटल RR, इसमें कोई भी हो, ए बी वॉट एवर, उसका मतलब नहीं, अभी पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे खाली। एंड मदर इज RH नेगेटिव, दैट इज स्मॉल RR, then fetus or child is always positive. That is capital R small r. ये सबको समझेगा पहले, देखो फिर आगे जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक दिस। ये मालूम है कैसे आता है, समझो टॉल प्लांट है, इसको हम क्रॉस करेंगे तो इसके बाद ये बनने वाला है, तो ये टॉल है और डॉर्फ है, तो यहाँ न्यू प्लांट भी क्या आएगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट है। ओके, नहीं उधर बाद में दूसरा एक्सेप्शंस बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो? अगर मदर ऐसे टॉल पॉजिटिव होगी और फादर नेगेटिव होगा तो भी बच्चा पॉजिटिव आएगा। बट कोई कोई होता है जो नेगेटिव होता है। नहीं नहीं ऐसे ही, एक मिनट, अभी आपका क्या है, चलो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं इस कंडीशन में बोल रहे हो ना, हाँ कौन सा बताओ, नहीं इसमें चेंज करना है ना, हाँ, तो कैसे? मदर मदर पॉजिटिव है, ओके, मदर क्या है, पॉजिटिव, राइट, और फादर, बच्चा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। नॉट पॉसिबल, उसमें हो सकता है,
अभी समझो, दोनों फादर और मदर ऐसे है, अभी वापस करके देखना है। अभी समझो फादर मदर है और ये फादर है, राइट? क्या होगा आगे? बोलो ना, ट्राई करके देखो, सुनो ट्राई करके देखो। तो इस निगेटिव हो सकता है, उसमें पॉजिटिव, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ टेम्पररी तो ये तो पहले देखो। अरे समझो पॉसिबिलिटीज वंस अगेन। चलो, ये कंडीशन है तो बच्चा क्या रहेगा, और ये कंडीशन है तो 3:1 रेशो, 3 बच्चे क्या हो सकते हैं और एक ऐसा, दैट इज द रेशो। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। परसेंटेज तो तब तक बाजू छोड़ दो, लेकिन तब तक क्या है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव। समझा क्या पहले देखो, ये समझा? चलो फिर आगे। हाँ, नेगेटिव, उसमें क्या है? अच्छा मामला ये देखो, अरे सब करके देखना है, उसमें क्या है, सवाल ही नहीं। सभी नेगेटिव है तो क्या है, नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव। ये दूसरा ले लो, अच्छा पॉजिटिव, नो डाउट। ये सब जीन्स का खेल है, सब क्रॉस करके हमें देखना पड़ता है, तभी आगे जाके हम बता सकते हैं कितना परसेंटेज है। ओके, ये क्रॉस करके देखना ही है, मतलब ये दिया है क्या? हाँ ले लो, एक कैपिटल है ना, यस यस। दूसरा क्या हो सकता है, सभी पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, नेगेटिव चांस नहीं था। देखो देखो करके, अरे सब करके लिखना है, करके देखना है। इसके सब सम, अभी ये 12th का चैप्टर एक्चुअली, ये सब डिटेल क्रॉसिंग वगैरह बहुत डिटेल ऐसे कुछ पे आते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, सभी पॉजिटिव। कुछ डाउट यहाँ तक? चलिए फिर आगे। तो ये कंडीशन लेते कौन सी, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? बोलो, फादर पॉजिटिव, मदर और बच्चा बिफोर बर्थ फीटस इज प्रेजेंट इन, कहाँ होता है, याद है ना, यूट्रस में होता है, राइट? फीटस इज प्रेजेंट इन यूट्रस। ओके, सो सपोज दिस इज द एम्ब्रियो और फीटस है अटैच टू मदर या यूट्रस के साथ, किसके साथ, ये कौन है, प्लासेंटा, और ये बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड, इतना तो मालूम है ना? ओके, क्या होता है डिलीवरी के टाइम मालूम है, दिस फीटस कम्स आउटसाइड, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आती है, तो हम कट करते हैं, फिर बच्चे को सेपरेट करते हैं वगैरह वगैरह, मालूम है? ड्यूरिंग फर्स्ट, मतलब ये जो फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, और जब हम ये अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कट करते हैं, एट दैट टाइम समटाइम्स some quantity of fetal blood comes in contact with mother's blood. फीटस का ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है, मदर के ब्लड में। ओके, अब देखो क्या होता है, इस फीटस के ब्लड में क्या है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है था, अभी आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन, सॉरी आरबीसी के ऊपर क्या है प्रेजेंट, आरएच। कितना समझा, बराबर? वन सेकेंड। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी व्हाट हैपेंस, फीटल ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद मदर ब्लड, ये समझा पॉइंट? देन तो फीटस के कई आरबीसी जिनके ऊपर आरएच एंटीजन है, वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। अब मदर के ब्लड में एंटीजन है क्या, क्यों, मदर नेगेटिव है। ओके, लेकिन जैसे ही एंटीजन आता है मदर के ब्लड में इसके अगेंस्ट आरएच एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं, किधर, मदर के ब्लड में। एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक, दूसरे चाइल्ड तक, ये एंटीबॉडीज मल्टीप्लाई होते हैं मदर के ब्लड में। ओके, क्या समझो वापस एक बार? इफ दिस कंडीशन, fetus is positive, mother is negative, during first delivery there is mixing of fetal blood with the mother's blood, तो ये RH एंटीजन वाला जो ब्लड है मदर के बॉडी में आता है, तो मदर के बॉडी में इसके अगेंस्ट क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज, और वो मल्टीप्लाई होते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी तक। अब सेकेंड चाइल्ड भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, फादर बदला नहीं है। अच्छा ओके ओके ओके, तो इसका वेब सीरीज वगैरह देखते इसलिए, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ओके ठीक है, तो वही तो दिखाते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ ओके, सेकेंड चाइल्ड भी क्या है, पॉजिटिव।
अब क्या होता है, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी मदर का ब्लड यहाँ थ्रू अम्बिलिकस कहाँ सप्लाई होता है, फीटस को जाता है, तो यहाँ RH एंटीबॉडीज भी कहाँ जाते हैं, फीटस के ब्लड में चले जाते हैं। और ये जो फीटस है पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, RH एंटीजन। और ये मदर से कौन आ रहे हैं उसके बॉडी के अंदर, फिर इन दोनों की रिएक्शन होती है और ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है और कौन डिस्ट्रॉय होते हैं, आरबीसीज बर्स्ट होने लगते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट सेकेंड चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव, इट डाइज। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बताओ ऐसा नाम क्यों रखा है, आरबीसी का, हाँ इरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो रहे किसके, फीटस के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और एक इसका नाम है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ ड्यूबॉर्न। उसको बोलते हैं HDN। हीमोलाइसिस मीन्स व्हाट, रप्चर ऑफ आरबीसी ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब न्यूबॉर्न चाइल्ड। नहीं वो प्रिवेंटेड है, अभी तो ये आसान होगा, टेंशन मत ले लो। अच्छा ओके, तो इसमें क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो देखेंगे आगे। समझा सबको, थोड़ा लिख दो ना इसके बारे में, है सब सिलेबस में। हाँ 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 बोलो बोलो। तो कोई सवाल नहीं, चलो अभी से प्लानिंग है, वन चाइल्ड पॉलिसी। नहीं अभी बाय डिफॉल्ट जो स्कूल की फीस है ना, उन्होंने बाय डिफॉल्ट अभी वन चाइल्ड पॉलिसी लाई है, उसके बाद तो नो चाइल्ड होने वाला है। नहीं समझा आप लोगों को, वन चाइल्ड पॉलिसी अभी देखे ना, आपकी बिल्डिंग में पड़ोसी में वन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है बाय डिफॉल्ट। क्यों, स्कूल का फीस 1.5 लाख 2 लाख क्या पड़ता है, अभी पड़ता नहीं, बराबर। तो धीरे धीरे नो चाइल्ड तक जाने वाला है। चलो ठीक है लिखो पहले, ओके। हाँ ऐसे लिखो, बताओ। हाँ ये लिखा ना, इफ चाइल्ड इज क्या, फीटस, हाँ पॉजिटिव, ओके। ड्यूरिंग, राइट ऑन, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ब्रैकेट में एक्चुअली लिखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन बोलते हैं, मालूम है ना। हाँ ब्रैकेट में लिखो डिलीवरी। fetal blood comes in contact with mother's blood या maternal blood. Fetal blood comes in contact with mother's blood. बताओ फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, सोचो, अभी ओन वर्ड्स में लिखना है। सोचो। यस राइट ऑन, लिखो राइट, बराबर है। RH एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, RH एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। नहीं मोस्टली होता ही है, वो कट करते हैं ना तो कांटेक्ट में आता ही है। वो लिखा ना पहले ही, वो ऊपर लिखा था ना, नहीं लिखा ना पहले ही, आई थिंक पहले लिखा है ना कि नहीं, ये वाला लिखा है, लिखा है पहले, वही तो लिखा है शुरुआत की, ठीक। हाँ चलो क्या लिखना है, हाँ इफ, हाँ क्या लिखा, वन सेकेंड सेंटेंस, हाँ राइट ऑन, RH एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन मदर्स ब्लड RH antibodies are produced in mother's blood against RH antigen, against RH antigen of fetus. समझा तक, लिखो। नेक्स्ट क्या होता है, राइट ऑन, अप टू सेकेंड प्रेगनेंसी, to second pregnancy, RH antibodies multiply in mother's blood. RH antibodies are multiplied
in mother's blood. तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, सोचो इसके बाद क्या. हाँ, तो एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगे, फिटल ब्लड. सही, राइट. RH एंटीबॉडीज इनटू RH एंटीबॉडीज एंटर इनटू फिटल ब्लड, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में. एंटीबॉडीज एंटर इनटू फिटल ब्लड and destroy RBCs. So this child cannot survive. This disease is called, अभी लिख दो, एरिथ्रोब्लास्टो. लिखो क्या वापस, क्या दिख रहा है. This disease is called erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. समझ लिया. और अदर नेम hemolytic disease of newborn, HDN. hemolytic disease of newborn. So the treatment takes place after the first birth only? Yes, बता दो कब ट्रीटमेंट देते हो. डेड चाइल्ड, मतलब देर इज अ स्टिल बर्थ. डेड, हाँ, ये तो शुरुआती होता है बॉडी में. और हाँ, डिजीज वही बोलो. जब सेकेंड चाइल्ड की डेथ है ना, उस टाइम वो स्टिल बर्थ होता है. स्टिल बर्थ मतलब डेड बच्चे ही पैदा होते हैं, ऐसे होता है अंदर, मतलब यूट्रस के अंदर ये सब चेंजेस शुरू हो जाते हैं. या तो कई बार आफ्टर डिलीवरी विद इन फ्यू डेज ऐसा होता है. हाँ, इधर है ना, रिमोट है ना. हाँ, लाइक कर दो, बंद करो जरा. नहीं, बताओ उसी तरफ जा रहे हैं. नहीं, कि धीरे धीरे. अभी ये समझाया था, तो ये लिखा, डिजीज का नाम लिखा. सो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम क्या है, ये किसकी वजह से हो गया. RH एंटीबॉडीज, इसकी वजह से हुआ है ना. तो हम करते क्या है, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी वी गिव वन इंजेक्शन टू द मदर विच न्यूट्रलाइजेस दिस ऑल RH एंटीबॉडीज. क्या होगा, देयर विल नॉट बी प्रॉब्लम विद द सेकेंड चाइल्ड एंड यू कैन कंटिन्यू. ज़्यादा भी नहीं. अच्छा, नहीं, अच्छा, पता नहीं अभी. ओके, चलो वन सेकेंड. ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ है, RH एंटीबॉडीज. तो हम करते क्या है, वी गिव इंजेक्शन विच न्यूट्रलाइजेस ऑल RH एंटीबॉडीज. तो क्या होगा, अगर एंटीबॉडीज नहीं तो क्या होगा, सेकेंड चाइल्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. समझा, दैट इज अ ट्रीटमेंट. तो अब ये पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. ऐसे बहुत केसेस थे जिनका सेकेंड चाइल्ड सर्वाइव ही नहीं होता था. लोगों को मालूम नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन रिसेंट, मतलब अभी बहुत साल हो गए, आई थिंक 20-25 साल के ऊपर हो गया, ये इन्वेंट हो गया. क्या, ये इंजेक्शन. फिर क्या हो गया है, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन देना पड़ता है. मतलब ऐसा अगर मैरिजेस हो रहे हैं, मतलब वाइफ नेगेटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हमें प्लान करके इंजेक्शन देना ही है. अदरवाइज सेकेंड चाइल्ड में प्रॉब्लम हो जाता है. ऐसे लिख दो नेक्स्ट लाइन में. इंजेक्शन इज गिवन टू द मदर. नेक्स्ट लाइन. इंजेक्शन इज गिवन टू द मदर which neutralizes RH antibodies.
neutralizes RH antibodies. It is given within 72 hours of delivery. First delivery. If the father and mother both are positive और दोनों negative तो वो injection से जरूरत नहीं, ये अभी क्रॉस होता है, मोस्टली इसी कंडीशन में प्रॉब्लम होता है, बाकी किसी कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, तो इसी यही कंडीशन है, बच्चा पॉजिटिव मदर नेगेटिव, इसमें ही गड़बड़ होती है, अदरवाइज नॉट। चलो हाँ, दूसरा कितना रेयर है और कितना है मालूम है आपको? पॉजिटिव लोग कितने होते हैं? 80 to 85% आर पॉजिटिव और रिमेनिंग निगेटिव। उनमें भी अगर ये मैरिजेस ऐसे हो रहे तभी जाके हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है, अदरवाइज नॉट। बोलो और कुछ डाउट आप भी पूछ सकते हैं, आज का क्वेश्चन अभी प्रॉब्लम नहीं रहा, दिस इज वेरी इजी नाउ। and if the baby is medical and the mother is positive कुछ नहीं होता है, क्यों बताओ? because the baby doesn't have बेबी का ब्लड अगर मदर में गया तो क्या होने वाला है? उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो कुछ नहीं होता। निगेटिव है ना, तो एंटीजन ही नहीं। एक का प्रॉब्लम होगा मदर निगेटिव और उसके बॉडी में एंटीजन आ रहे, तभी जाके प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज नॉट। इसलिए वन सेकेंड रिमेंबर, ए पॉजिटिव का ब्लड हम ए निगेटिव वाले को नहीं देते हैं। तो ऑलवेज ब्लड ग्रुप चेक करते टाइम हम क्या देखते हैं? ए को प्रीफर करते ही है, लेकिन ए पॉजिटिव टू ए पॉजिटिव, नॉट ए पॉजिटिव टू ए निगेटिव। वापस यही प्रॉब्लम होगा, सेम प्रॉब्लम होता है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव नहीं देते। But fetal blood can go to mother if mother is positive and fetus is negative. निगेटिव, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? Mother का blood भी जाता है ना fetus नहीं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट आरबीसीज कभी नहीं जाते, ओनली प्लाज्मा जाता है। नहीं, जब प्रेगनेंसी के टाइम थ्रू प्लासेंटा ब्लड सेल्स नहीं पास होते, ओनली प्लाज्मा पास होता है। नहीं समझा? हाँ, तो वन सेकंड, अरे समझ लो बराबर। हाँ then प्लासेंटा पर मैंने प्लासेंटा है ना, ये मालूम है ना प्लासेंटा, तो यहाँ इस प्लासेंटा से क्या नहीं जाते हैं? मदर के ब्लड सेल्स फिटस में नहीं जाते, फिटस के अपने सेल्स होते हैं। कौन जाता है? खाली फ्लूइड, प्लाज्मा जाता है न्यूट्रिशन के लिए। यस, plasma has the antibody हाँ, तो एंटीबॉडीज कहाँ है? प्लाज्मा में, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। समझ रहा है ना? Sir, so if mother is positive, then Rh antibodies won't be formed. होगा ही नहीं, समझ नहीं। एंटीबॉडी कब बनेंगे? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट बनते हैं, तो नहीं बनेंगे। पूछो आज के नहीं क्वेश्चन। रिसेंटली है तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे, सुनो वन सेकेंड, ऐसी कंडीशन अगर जब अबॉर्शंस वगैरह होते हैं तभी भी इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बराबर ना? रिसेंटली तो हमें लास्ट वीक की एक लेडी को मैंने दिया था, तो ऐसे देने पड़ते हैं। एक 2000 या 3000 कुछ अमाउंट प्राइस है उसके, बहुत सारे ट्रेड नेम्स है उसके, लेकिन ये होता कि इसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इवन समझो फर्स्ट चाइल्ड ऐसा हो गया, फिर बाद में सेकेंड चाइल्ड से वैसे अबॉर्शन भी हो रहा है तभी भी देना पड़ता है, तो वापस नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी या उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहा है? तो एवरी टाइम अगर अबॉर्शन हो रहे हैं तो हर टाइम देना पड़ता है इंजेक्शन, तभी नहीं तो सेकेंड चाइल्ड सर्वे नहीं होगा। So then if injection is not given, then does it cause any problems? प्रॉब्लम बच्चा सेकेंड The daily life of the woman. कुछ नहीं, प्रेगनेंसी भी खाली प्रॉब्लम है इसका, ये एंटीबॉडीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, मदर को भी इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक का प्रॉब्लम कर सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव वाला ब्लड ले रहे हैं तब प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ऑलरेडी कौन है अंदर? तो समझो दूसरा कौन सा ब्लड लिया? पॉजिटिव ब्लड लिया, ऑलरेडी मदर नेगेटिव है ना, तो गलती से भी पॉजिटिव आ गया, मदर विल डाई। ये बहुत सीवियर रिएक्शंस होते हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। जब हम ब्लड देते हैं तो ऑलवेज रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड थोड़ा सैंपल मिक्स करके भी देखते हैं, सेम ब्लड ग्रुप होने के बाद भी, क्योंकि दूसरे और सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पता चलेगा आपको। तो ये क्या मतलब मिसमैचिंग ना हो, इसलिए हम वापस थोड़ा थोड़ा ब्लड का मिक्स करके अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं कुछ क्लॉट वगैरह हो रहा है कि नहीं, तभी हम देते हैं, अदरवाइज नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो गई, पर्सन ऑन द स्पॉट डेथ होती है विद इन फ्यू आवर्स, और कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे इतना डेंजरस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इज़ वेरी सीरियस मैटर। तो रेयरली हम
ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत है तभी देते हैं, अदरवाइज नॉट, ऐसे मजे मजे के लिए नहीं कुछ होता है, ओके तो बहुत सीरियस मामला है। चलो ठीक है, ओके जस्ट एक 5 मिनट थोड़ा सा रुकते हैं फिर शुरू करते हैं। 5 मिनट है क्या ना? बाहर में जाओ, रुको। नहीं है ना? नहीं है, 5 मिनट खाली जरा रुको तो। ये आपका सब वो है ना, इसके बाद बोला हार्ट वगैरह, पेरिकार्डियम, हार्ट वॉल सब वो है ना, एक्सटर्नल इंटरनल हो गया, राइट? ये पंपिंग एक्शन सब हो गया ना, कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल, ईसीजी बाकी है, ये ब्लड वेसल्स, और ये डिसऑर्डर से बाकी है ना, क्या हो गए? बाकी है, ओके। ब्लड प्रेशर नहीं, मतलब ये कॉजेस वगैरह हो गए क्या? इंक्रीज डिक्रीज के, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर नहीं हुए ना? ठीक है, और ईसीजी और एक लास्ट का, ठीक है। ये पॉइंट अभी देखेंगे इनका क्या क्या होता है। लिम ये भी बने, लिम्फेटिक सिस्टम बाकी है ना, ये बाकी है क्या? हो गया लिम्फेटिक, ओके। तो इनका कैसे मैम कौन सा लेते देखते हैं, नहीं तो फिर वापस ले लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कौन से चैप्टर लेना है? एक्सक्रीशन, चलो ठीक है। हाँ पेजेस क्या पता नहीं, तो इनका देखो ना, इनके नोटबुक देख के छोड़ो। ईसीजी के लिए ज़्यादा नहीं लगेगा, दो पेज छोड़ दो, उसके लिए टोटल 2 पेज चलेगा, टोटल 2 पेज काफ़ी है, 2 to 3 पेज छोड़ दो चलो। हाँ एक जस्ट एक बोलना है, ये चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है क्या एनसीईआरटी में? ये सुनो, अभी आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है आपको 12th में बोर्ड में और एनसीईआरटी में तो है ही 11th के लिए, तो दोनों बुक से पढ़ना पड़ रहा है हमें, क्योंकि आपको बोर्ड में अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लिखना है, एनसीईआरटी नीट में एनसीईआरटी अकाउंट लिखना है, समझो कुछ? नंबर्स का थोड़ा वही उधर ही जाता, थोड़े ज़रा थोड़े एक वैल्यूज़ ज़रा थोड़े ब्रैकेट में लिख दो आप लोग दोनों साथ में, ठीक है? इधर आते हैं, हाँ हाँ चले वो भी, यस 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 वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं अभी, एनसीईआरटी में बहुत सिंपल है एक्चुअली। नहीं थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है देखो, वेरी सिंपल। हाँ, लिविंग cells to be provided with nutrients, oxygen and other essential substance. Even there are waste and harmful substances produced have to be removed continuously. Okay. So we have efficient mechanism for the movement. Different groups of animals have evolved different methods of transport. Simple organisms like ये देखिए, sponges and coelenterates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exist. इसका मतलब क्या रहेगा ये लाइन का? थोड़ा हम एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं, फिर भी पॉइंट आएगा। हाँ आपको मालूम है स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस मालूम है ना, तो उनके अंदर कौन सी कैविटी होती है स्पॉन्जेस में? याद है किसमें नाम? स्पॉन्जेस में जो कैविटी है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो इनमें सर्कुलेशन ऐसे चलता है, उनके बॉडी के अंदर वाटर आता है और यहाँ से निकल जाता है, मालूम है? ऑस्टिया ऑस्किलम पढ़ने वाले हैं हम एनिमल किंगडम में, फिर भी यहाँ रेफरेंस है इसलिए, तो इससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये लिखा है। व्हाट इज सिलेंट्रेट? सिलेंट्रेट कौन होता है? एग्जांपल हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी ऐसे होता है, खाली इसमें टेंटाकल्स होते हैं लाइक दिस, तो ऐसे टेंटाकल्स है और इसके अंदर भी कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? सिलेंटेरॉन, इसलिए फाइलम का नाम क्या हुआ है? सिलेंट्रेटा। तो इस कैविटी के अंदर फिर इनके अंदर भी डिफ्यूजन ऐसे होता है, तो वो क्या बोल रहे हैं इधर, जैसे अपने यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में इनमें नहीं है बिकॉज दे आर प्रिमिटिव, शुरू वाले एनिमल्स है,
तो इनमें कैविटीज थ्रू होता है, देखो फैसिलिटेट देयर बॉडी कैविटीज। लिखना है लाइन, लिखना है तो लिख दो नेक्स्ट पैराग्राफ में। So it occurs to exchange occurs through simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन लिखो, बताओ एक दो लाइन लिखे, थोड़ा एडिशनल है एनसीईआरटी में है लेकिन। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो उससे पहले बताता हूँ, एक लिखो बात पहले देखो। तो ब्लड का फंक्शन क्या हो गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? क्या सब लिखा है क्या? प्रोवाइड, सप्लाई, अदर इसेंशियल में कौन आएगा? नहीं, सप्लाई सर, प्रोवाइडेड। तो अदर इसेंशियल में क्या आएगा? हार्मोन्स, एंजाइम्स, देन न्यूट्रिएंट्स इधर आ गए, फिर क्या रहेगा? एंटीबॉडीज, ये सब सप्लाई करना है। देन इवन दूसरा फंक्शन रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, दे शुड बी रिमूव कंटिन्यूसली, समझा? सो ये सबसे मेन फंक्शन किसके हैं? ब्लड के। चलो मैं बाद में ब्लड के फंक्शन में लिखवा देता हूँ। चलो ये लिखो पहले, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक और सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हाइड्रा, और एक दो एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ, ऑरिलिया मतलब जेलीफिश। तो सिलेंट्रेट में जो कैविटी है उसको बोलते हैं सिलेंटेरॉन। कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट इज कॉल्ड सिलेंटेरॉन। सब रिपीट होगा आपको एनिमल किंगडम में, यहाँ थोड़ा रेफरेंस है इसका। What is next? लेकिन more complex organisms they have special fluids. कौन सा? Most commonly used in higher organisms. Another body fluid. ये थोड़ा पार्ट बाकी है. Helps in the transport of certain substances. Okay. About the हाँ क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? Mechanism of circulation of blood. Okay. नेक्स्ट अभी ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, थोड़ा सा रेफरेंस इधर, इसमें ज़्यादा नहीं दिया एक्चुअली। हाँ पढ़िए क्या लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कॉल्ड प्लाज्मा एंड व्हाट इज फॉर्म एलिमेंट्स सेल्स। रिवीजन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, प्लाज्मा कौन सा कलर ये हुआ है? स्ट्रॉ मतलब लाइट येलो कलर। नेक्स्ट विस्कस फ्लूइड, क्यों? थिक है, थिकर देन वाटर। अगेन सेम 50% क्या है? 50% ब्लड नहीं प्लाज्मा है, और 45% कॉर्पस्कल्स यानी सेल्स। इधर नाम क्या रखा है? फॉर्म। सुनो सुनो, यहाँ ये लोग कॉर्पस्कल्स और सेल्स नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल रहे, वही है। लेकिन चलो नेक्स्ट, इसमें प्लाज्मा में 90 to 92% क्या है? वाटर ही है। प्रोटीन्स कितने हैं? अब देखो नंबर, अब निकालो, और जो इसमें लिखा था वो स्टेट बोर्ड में, थोड़ा ब्रैकेट में ये नंबर भी डाल दो, मतलब थोड़ा एनसीईआरटी वाले थोड़ा ये रेफर करेंगे। ये थोड़े चैप्टर में अपना गड़बड़ होने वाला है, दोनों इसकी बुक से पढ़ रही, इसलिए अभी क्या करेंगे उसको। उधर कितना लिखा है? 90। हाँ पहला 90% है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो ये सेम ही है, 90 to 92%। ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन लिख दो, आपके मार्क ना जाए इसलिए। प्रोटीन उधर 7% है, इधर 6 to 8, ब्रैकेट में लिख दो 6 to 8, तो एवरेज वही होता है। आपके सामने दोनों बुक खरीदे समय है ना, प्रीवियस वाज स्टेट बोर्ड, ये एनसीईआरटी है। नेक्स्ट प्रोटीन देखिए कौन से, सेम नाम है, फाइब्रिनोजिन, उधर एक दो तीन और नाम थे। ओके चलो कोई बात नहीं, इसमें आपने ये भी लिखा है प्रोथ्रोम्बिन, बराबर ना?
चलो नेक्स्ट, अब बताइए फाइब्रिनोजिन का फंक्शन ये हुआ है क्लॉटिंग, कैसे अभी बताओ, रेफरेंस आ गया और रिवीजन हो जाएगा। फाइब्रिनोजिन का क्या होता है, फाइब्रिन, और उसके फाइबर धागे बनते हैं, उसका नेटवर्क बनता है, लाइक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट ग्लोबुलिन मैंने बताया था, बोलो देख के बताओ डिफेंस कैसे, देख के बताओ, सब लिख के दिए एंटीबॉडीज बराबर। तो WBCs क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं बाय यूजिंग ग्लोबुलिन, वही लिखा है देखिए। ये नीट में मैच द कॉलम के लिए आया था क्वेश्चन, प्रोटीन्स का और फंक्शंस का। ग्लोबुलिन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन क्या लिखा है, एंड अल्ब्यूमिन का मैंने बताया था, लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर या बैलेंस बनाता है, हाँ थिकनेस, यस वही है, समझा। अब प्लाज्मा में क्या होता है, मिनरल्स कितने होते हैं परसेंट, वाई देख के बताओ, देखा नहीं मिनरल्स सॉल्ट इनऑर्गेनिक 1% ओनली, 1% लिखा है देखो। तो इसमें कौन है, ये सब इवन, बाकी और कौन होते हैं, अदर सब्सटेंसेस में कितने परसेंट 1 2 2 है कि 3, इसमें ये सब ग्लूकोज एमिनो एसिड लिपिड्स वगैरह। और क्या लिखा है, दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब मूविंग स्टेट में रहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से, अभी देखे थे ना फैक्टर्स, 12 फैक्टर्स, वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में, नहीं समझा। वन सेकेंड, सी रीड केयरफुली। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन, तो कब एक्टिव होंगे, मतलब वही डैमेज टू द टिश्यूज और ब्लड वेसल, तभी वो एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज नॉट। और एक पॉइंट लिखना है आपको, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, एक लाइन लिख दो किधर, मतलब आपका एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, सब अभी लाइन वाइज पढ़ेंगे हम। थोड़ा एडिशनल लिखो, एडिशनल लिख के दीजिए, क्या उधर जगह है तो लिखो, किधर भी लिख दो, प्लाज्मा में जगह है तो उधर लिखो। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। समझा प्लाज्मा का पैराग्राफ सबको। चलो नेक्स्ट, अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन है, ये सब सेल्स। तो आप एक एक देखो, पहले फर्स्ट कौन है, RBC मोस्ट अबंडेंट, ओके। हाँ ये देखो, अभी ये वैल्यू लिख रहा है उन्होंने, मेल फीमेल नहीं लिखा है, डायरेक्टली क्या लिखा है 5 to 5.5 मिलियन, लिख दो ब्रैकेट में। उधर उन्होंने मेल फीमेल में सेपरेट वैल्यूज दिए हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। खाली जस्ट ब्रैकेट में, वो कैंसिल मत करो, उसके ब्रैकेट में लिखो, मतलब आपको दोनों याद रहेंगे। ये लिखो क्या था, एक मिनट दिखाओ, यूनिट भी याद रखो, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। प्रोडक्शन का होता है वो सेम है, रेड बोल रहा है, चलो रिपीट हो रहा है आप लोगों का। डिवाइड ऑफ मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे आर, ये भी हो गया। नेक्स्ट रेड कलर है क्यों, आयन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड, ओके नेक्स्ट। हाँ इसके बारे में बताओ, उधर क्या था, मेल और फीमेल में सेपरेट दिया है, देखो 14 to 17 और 12 to 13 to 15, तो इधर क्या दिया है, एवरेज 12 to 16 दिया है। लेकिन देखो अगेन यूनिट याद रखना है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये किसकी वैल्यू है, हीमोग्लोबिन की, समझ रहे ना सबको, क्या ऊपर से जा रहे हैं, अरे नहीं ना, अच्छा ओवरडोज है क्या, अरे नहीं ना, अच्छा ओके ओके। नहीं समझता तो तुरंत पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस पढ़ाएंगे, उसमें क्या
समझने के बाद कि 2 साल याद रखना है आप लोगों को, 2 years। तो आपको कुछ भी आता है, मतलब ये परसेंटेज पूछते हैं, ये काउंट पूछते हैं, 5 वगैरह ऐसे, लाइफ स्पैन पूछेंगे, ये तो हो गया अपना। Then what is the function of hemoglobin? Transport of O2 and CO2। एवरेज लाइफ स्पैन हो गया। डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, ये भी हो गया। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? एक्चुअली उधर हमने और ज़्यादा पढ़ा है क्या, इंक्रीज काउंट को क्या बोलते हैं, डिक्रीज को क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह। लिम्फ वही थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके लिए, थोड़ा आपको वो नहीं ना शुरू का पार्ट, आर्टरी वेन कैपिलरी नहीं हुआ है ना सर, ब्लड वेसल्स हुआ आप लोगों को, लेकिन ये सभी को नहीं हुआ है ना। लिम्फ पढ़ाने के लिए फिर पढ़ाओ अभी, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, और इतना लेते पहले। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है, नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स। हाँ, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, कलरलेस है। न्यूक्लियस प्रेजेंट क्या एब्सेंट, प्रेजेंट। नेक्स्ट, हाँ इधर नंबर चेंज है, उधर 5 to 11,000 है, इधर देखो ब्रैकेट में। तो जो चैप्टर खाली ओनली 11 में हम 12th के बुक में तो सवाल ही नहीं पढ़ेंगे, फिर वो स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़ेंगे, समझा ना। जो दोनों जगह है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में आपको 60% चाहिए मार्क्स, कई बच्चों को वो मिलना मुश्किल हो गया अभी, समझा ना। इतनी डिफिकल्ट कंडीशन हो गई है। तो यहाँ 60% अगर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई। नीट में अगर टॉप भी आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जेई में ऐसा ही है, आपको 75%, उनको तो 75% है, वो नहीं रहेंगे तो डिस्क्वालीफाई। आप जेई टॉपर भी होंगे तो नहीं 60 के ऊपर बेटर, मिनिमम 60 से नीचे नहीं चाहिए पीसीबी में। इस टाइम फिजिक्स का बहुत हार्ड पेपर है ना, तो मार्क मिलना मुश्किल हो गया, तो बहुत सारे बच्चों को बिलो 60 तो उधर ही मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। नीट में कितने भी आना तो मार्क। सेम इन जेई, जेई में तो बहुत सारे लोग जेई एडवांस क्रैक कर चुके हैं और बोर्ड में मार्क नहीं है, ये हालत हुई है। तो दैट्स वाई द प्रॉब्लम। इसलिए हम ये इतना क्या बोलते हैं परेशानी, तो इतना पढ़ा के जा सकते थे, लेकिन आपका लॉस ना हो इसलिए चल रहा है, दोनों बुक से कर रहे हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ डिफरेंस है हम नोट कर रहे हैं। अरे को समझ रहे हैं, चलेगा ना ऐसे आपके फ़ायदे के लिए, नहीं तो क्या ये पढ़ा के जा सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया काम हमारा, इतने भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं। एनसीईआरटी में एक्चुअली बहुत कम इन्फॉर्मेशन है दैन स्टेट बोर्ड। बाहर लोगों का अलग लगता है कि स्टेट बोर्ड बहुत सिंपल है, इट्स डिफरेंट। 11-12 में उल्टा है, सीबीएसई से ज़्यादा स्टेट बोर्ड डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वास्ट है, डिफिकल्ट छोड़ दो, वास्ट है, कंटेंट ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट, कितना है लाइफ स्पैन? नहीं कितना दिया था लेकिन मैंने 3 to 4 days हो गए। ओके 3 to 4 days हो गए। चलो ठीक। हाँ देन 2 टाइप्स कौन से हैं? चलो रिवाइज हो जाएगा। ओके ये सब सेम रिपीट है, खाली वैल्यूज डिफरेंट है, बता दो आपको, ये तो हो गया ऑलरेडी। हाँ ये देखो अभी न्यूट्रोफिल्स कितने थे उधर, ये अबाउट 70 कुछ तो थे। हाँ 72 पर, इधर कितना है लिख दो ब्रैकेट में, ये वैल्यूज इसके हैं ब्रैकेट में, मतलब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी की वैल्यूज है। न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू लिखो 60 to 65%। बेसोफिल तो आई थिंक सेम है। मोनोसाइट्स थोड़ा डिफर है, उधर कितना है 1 2 3। हाँ क्या हुआ? नहीं गलत है, ऐसा नहीं रुको। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइट्स, ये परसेंटेज इसका ही है, मोनोसाइट्स का ही है। 1 सेकंड रुको वेट बताता हूँ आपको। इसका परसेंटेज करो, न्यूट्रोफिल के ब्रैकेट में 60 to 65 हो गया। नेक्स्ट लिखो बेसोफिल का सेम है, मोनोसाइट का लिखो 6 to 8, उधर शायद 1 2 3 कुछ तो है ना, कितना है 3 to 5। हाँ तो इधर 6 to 8 है।
क्या हो? अब फंक्शन पे देखते हैं पहले, चलो एक एक का। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का फंक्शन हमने लिखा है, कौन सा? फैगोसाइटिक विच डिस्ट्रॉय, ये हुआ है राइट। बेसोफिल का भी फंक्शन हुआ है, कौन सा? अब हमने इसका और एडिशनल सीखा, उन्होंने इसका फंक्शन नहीं बताया, फिर भी हमने सीखा, चलो कोई बात नहीं। देन आर इन्वॉल्व इन, इतना ही दिया उन्होंने, क्या? अब इओसिनोफिल उधर आई थिंक 1 2 3 है ना, इधर 2 2 3 नियर अबाउट वही है। और देखो फंक्शन ये मैंने लिखी दिया शायद आपको, रेजिस्ट इन्फेक्शंस दे ना, तो थोड़ा मैं मिक्सिंग भी करता हूँ। चलोगे यहाँ तक, फिर आगे। एंड ये भी मैंने लिखी दिया, ऑल्सो एसोसिएटेड हो गई, देखो उधर एलर्जिक लिखा है क्या? ये भी हुआ है लिम्फोसाइटिंग नियर अबाउट कितना है उधर 25 30, तो इधर 20 25। इसके दो टाइप भी हो गए अपने, बी और डी, याद है ना? इनके और सब टाइप मैंने सीखे, इधर नहीं दिए। फंक्शन है उनका, क्या फंक्शन है? इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ डाउट हो गया डब्ल्यूबीसीज? चलो नेक्स्ट। अभी प्लेटलेट्स, बोन मैरो, कौन सा? ये सेम है, क्या है? उसके बाद ये थोड़ा सा डिफर है, उधर 2.5 to 4.5 कुछ तो है ना, इधर 1.5 to 3.5 लैक्स। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स आज हुआ ना, आज के लेक्चर में हमने सीखा है, आज के लेक्चर में हुआ वहाँ से। हाँ ये वाला, इसमें देखो 2.5 to 4 है ना, इसमें ब्रैकेट में ये लिखो 1.5 to 3.5 लैक्स। बाकी सब तो सेम। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में भी सेम ही है, और ये भी हो, इसमें कुछ ज़्यादा है। हाँ ये देखो, ये आपके बुक में ही है, ये देखो एंटी भी, ये इसलिए फॉलो किया हमने, एक्चुअली यही करेक्ट है, लेकिन उन्होंने रेसिपेंट वगैरह नहीं दिए। बाकी सब तो पढ़ने की जरूरत है ना, सेम हो है, अभी इसमें ज़्यादा नहीं, खाली ये वाला मेन पार्ट तो ये पढ़ते हैं खाली। जो अभी हमने सीखा ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस, तो यहाँ से लिया है, देखो उधर शुरू से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, अनदर एंटीजन कॉल्ड, कौन सा? RH। हाँ ये मेन रहेगा। RH स्टैंड्स फॉर रिसस मंकी, तो ये सिमिलर एंटीजन ऑल्सो प्रेजेंट ऑन RBC ऑफ रिसस मंकी। तो ये कहाँ से वर्ड है? रिसस मंकी से। देखो ऐसा रिश्ता है अपने मंकी के साथ। चलो नेक्स्ट लिख दो, राइट दो, RH के बारे में लिखो। RH एंटीजन RH antigen also present in rhesus monkeys. So RH stands for rhesus. तो कितने परसेंट लोग? 80% आर पॉजिटिव, 20% नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। हाँ, RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू विल फॉर्म, कोई ना, क्या लिखा है? कोई नेगेटिव पर्सन है, उसको हमने कौन सा ब्लड दिया, तो क्या होगा उसके बॉडी में? क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे। नेक्स्ट, हाँ सो इसलिए हम पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव, नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव को देते हैं। स्पेशल केस ऑफ क्या लिखा है? RH मतलब क्या? मिस मैचिंग, जो अभी हमने एग्जाम्पल है ना मदर और चाइल्ड का, वही। ऑब्जर्व बिटवीन, ये देखो क्या लिखा है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ with the fetus, then RH antigen of the fetus separated by
प्रेगनेंसी टाइम में चेंज नहीं होता है. कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. हाउएवर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ, मोस्टली होता ही है, एक्सपोजर ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब फीटस का पॉजिटिव ब्लड मदर के नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है. तो उससे क्या होगा? इन सच केसेस स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग अगेंस्ट, राइट. देन सब्सिक्वेंट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू एंड डिस्ट्रॉय द, दिस कुड बी फेटल फॉर द फीटस और कुड कॉज, या तो फेटल हो सकता है या इससे डेथ होती है. क्या क्या होता है? सीवियर एनीमिया होता है. क्यों बताओ? आरबीसी बर्स्ट हो रहे हैं तो सीवियर, एंड इसके बाद में क्या होता है उसको, और उससे डेथ होती है. तो डेथ होती है या तो पहले ही होगी या बर्थ के बाद होगी. देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड, देखो बढ़ा गया, फिटलिस. दिस कैन बी अवॉइडेड, देखो, एडमिनिस्ट्रिंग मदर इमीडिएटली आफ्टर द डेथ विद इन 72 आवर्स. आज के लिए क्वेश्चन पूछेगा, सेम हमने पढ़ा है, समझा. नेक्स्ट अभी क्लॉटिंग का पढ़ते हैं, जैसे दिया वैसे. उल्टा शुरू किया उन्होंने. अच्छा ठीक है. हाँ क्या लिखा देखो. हाँ है ना, पढ़ो. कोएगुलेशन आगे पढ़ो ना, लाइन क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन तो पढ़ो. ऐसा मत करना. अच्छा हो गया. ओके और रिजल्ट के बाद चलो नेक्स्ट आगे. ओके देन कोएगुलेशन. ओके दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस, तो सिंपल है. हाँ ये देखो क्या हुआ है. ऑब्जर्व डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ कट और इंजुरी. ओके क्लॉट का दूसरा नाम क्या है? कोएगुलेशन. मेनली नेटवर्क ऑफ, ये उल्टा लिखा है ना, देखो कैसे. नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन, ये शुरुआत की है. देन इन विच, उसके अंदर, अब उल्टा वापस, फाइब्रिन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ, समझ ना, उल्टा जा रहा है. नेक्स्ट आगे थ्रोम्बिन क्या करते हैं? थ्रोम्बिन किससे बना है? प्रोथ्रोम्बिन. देन एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का दूसरा नाम, थ्रोम्बोकाइनेज, इज रिक्वायर्ड फॉर. देन दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय, ये क्या देखो, कैस्केड. कैस्केड मतलब एक से दूसरा बनता है. देन इन्वॉल्विंग कितने? 12 फैक्टर्स. नेक्स्ट स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट. देखो क्या हो रहा है, जब इंजुरीज होती है तो कौन स्टिमुलेट होता है? प्लेटलेट. उसके बाद टू रिलीज वही सब फैक्टर्स. देन रिलीज बाय द टिश्यूज. इवन टिश्यूज के भी क्या करते हैं? कोएगुलेशन. तो टिश्यूज से हो रहा है तो एक्सट्रिंसिक, ब्लड वेसल में हो रहा है तो इंट्रिंसिक. ये उन्होंने लिखा नहीं. इवन कैल्शियम आयंस आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन. तो कैल्शियम होना भी जरूरत है. कुछ लिखना है याद रहेगा? सेम लिखा है, उल्टा उन्होंने शुरुआत देखो कैसे किया है. पहले क्या लिखा है? फाइब्रिन, उल्टा जा रहा है. देन फाइब्रिन ऐसे. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट. उसके बाद ये हो गया. हाँ तो डिफरेंट है ये, बाकी है ना. बाकी आपको, हाँ चलो जस्ट दिखाता हूँ कैसे चैप्टर. सर्कुलेटरी क्या लिखा है? ये हो गया ओपन क्लोज, राइट. देन इसमें हमने जो पढ़ा था ना, किसका हार्ट, एम्पीबियंस वगैरह है. देखो 3 चेम्बर्ड, फिश में 2 चेम्बर्ड. ये देखो देखो, जिनका हुआ है वो तो देख लो. फिश में कौन सा हार्ट है? 2 चेम्बर. एम्पीबियंस में और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में कितना है? और बाकी मैमल्स और बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर. ओके ये जिनका हुआ है उनके लिए खाली, बाकी बहुत लोग बाकी है. ये सब याद है ना. फिश में सिंगल सर्कुलेशन, उसमें इनकम्प्लीट डबल, एम्पीबियंस में वगैरह, और हम में डबल सर्कुलेशन. उसके बाद हाँ ये देखो, ये तो सिंपल ही है. टाइम है ना, बाकी कितना है? चलो ये देखो क्या लिखा आपने. एट्रिया है ना, पेरिकार्डियम, वेंट्रिकल्स वगैरह है. ये कौन सा व्यू है बताओ?
ये कौन सा डायग्राम है? इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या दिखा है? ये देखो एसए नोड वगैरह दोनों साथ में दिया है। उसके बाद देखो साइनोएट्रिलेसेन, एवीएन वगैरह ये सब है। कार्डियक साइकिल वो तो पूरा पैराग्राफ दिया उन्होंने। ये सब हो गया आप लोगों का। ईसीजी ये बाकी है ना। उसके बाद डबल सर्कुलेशन, देन ये देखो डबल सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स है। हाँ एक पॉइंट रह गया है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। डिसऑर्डर्स में देखो क्या लिखा है? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है। उसके बाद देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट अटैक। उसके बाद अंजाइना और हार्ट फेल्यूर। जैसे हाँ ये थोड़ा बाकी है, राइट, ये थोड़ा बाकी है। चलो खाली आपका क्या बाकी है? लिम्फ। कितना टाइम है, क्या लेना है? हाँ, तो देखो थोड़ा प्रीवियस पॉइंट देखो। नहीं अभी बाकी है, जस्ट नहीं बस खाली आप पढ़ा दे थोड़ी। अरे देखो तो सही, अभी 10 मिनट बाकी है ना। नहीं जा रहा नहीं है, छोटा नहीं छोटा नहीं बैठो इधर ही, खाली देखो प्रीवियस पॉइंट्स। जो नए लोग हैं वो जरा थोड़े मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, वो थोड़ा जिसको नहीं समझे तो वापस पूछ सकते हैं। जिनको आरबीसी, इनको शायद मेरे ब्लड ही पड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं क्या क्या बन सके? नहीं होते, नहीं होते। नहीं पता था, एक मिनट, एक पॉइंट रहेगा तुमको बताने का। चलो सबको क्लियर करो। लिसन एवरीवन, ये समझो RH एंटीजन है, राइट। उधर हमने क्या देखा था, जब A होता है तो उधर कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी बी, बराबर है ना। ऐसा कोई एंटीबॉडी यहाँ नहीं होता। सुनो वन सेकेंड, RH एंटीजन मतलब कौन सा ब्लड है? पॉजिटिव ब्लड। लेकिन उनके बॉडी में इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। यहाँ हमने क्या देखा था? ए ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है? एंटी बी। ऐसा यहाँ नहीं होता। RH एंटीजन है तो इसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती। RH एंटीजन नहीं है तो भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी। ये बनेगी कब? जब समझो हमें RH पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव को दे दिया तो उसके बॉडी में क्या होगा? उसके बॉडी में क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे। सुना भी अगेन, तो सडन प्रॉब्लम तो होगा नहीं। कब प्रॉब्लम होगा उसको? जब सेकेंड टाइम ब्लड देंगे तभी होगा। जैसे मदर में हमने सेकेंड प्रेगनेंसी में बोला था ना, सेम यहाँ होता है। समझो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, A पॉजिटिव का ब्लड हमने दिया A निगेटिव को, राइट। तो इसके बॉडी में क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे। कौन से एंटीबॉडी? RH। लेकिन इसके बॉडी में रहेंगे ऐसे ही लाइफ लॉन्ग। जैसे ही हम सेकेंड टाइम वापस A पॉजिटिव का ब्लड देंगे तो क्या होगा? फिर इनकी रिएक्शन होगी, किसकी? RH एंटीबॉडी विल डाई, पेशेंट की डेथ होगी तुरंत डेथ। फर्स्ट टाइम ऐसे ज़्यादा दे दिया ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव को, तो फिर तभी अगर एंटीबॉडीज बनेगी तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे? नहीं करेगी, उसके बॉडी में ऐसे रहेगी। कब रिएक्ट करेगी? जब दूसरा पॉजिटिव वाला ब्लड आएगा तब क्या होगा? उसके साथ रिएक्ट होगी और डेथ होगी उसकी, फिर सर्वाइवल नहीं। इसलिए हम पॉजिटिव ही देते हैं, ऐसा मिक्स नहीं करते कभी। इसमें हमें मालूम ही नहीं ना, मतलब उसमें ये पॉजिटिव का मोस्टली देते ही नहीं हम, तो देने के बाद इंजेक्शन देने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसे होता है। कुछ नहीं होगा, नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा। समझो हमने सेकेंड टाइम इस पर्सन को नेगेटिव ब्लड ही दिया है तो कुछ नहीं होगा। कब प्रॉब्लम होगा? वापस पॉजिटिव दे रहे तो तब प्रॉब्लम होगा उसमें। लेकिन रिस्क लेना जरूरी नहीं ना, डेथ होती है ना, डेथ तो रिस्क नहीं लेते हम, तो सेम ब्लड ग्रुप ही प्रीफर करते हैं ऑलवेज। और देखो कुछ डाउट? थोड़ा हाईलाइट करो ना प्रीवियस पॉइंट, बाकी आप लोग भी देख सकते हैं। 5 मिनट। इसके बाद जो चैप्टर है एक्सक्रीशन, वो हम खाली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, स्टेट बोर्ड से नहीं, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड में 11th में, तो आपको बोर्ड में नहीं आएगा वो। आप समझ रहे हैं? हाँ, उनसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सक्रीशन का चैप्टर 11 एनसीईआरटी में और 11 स्टेट बोर्ड में। तो 11 का स्टेट बोर्ड तो 12th में आता नहीं, तो खाली जो चैप्टर 12th में स्टेट बोर्ड में वही हम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर जो है सर्कुलेशन 11th में एनसीईआरटी में और 12th में स्टेट बोर्ड में, तो आपको बोर्ड में लिखने के लिए आएगा। क्या आएगा? एक्सप्लेन प्लाज्मा, एक्सप्लेन आरबीसी, लाइक दैट,
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोएगुलेशन एक्सप्लेन करो तो लिखना है थियरी आपको, तभी मार्क मिलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो जैसे आपने बोर्ड का एग्जाम 10 का दिया उसी तरह सब। जैसे ये जो है ना पल्स पॉइंट, ये डायग्राम आया था एक बार इस बोर्ड में। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर जरा याद दिलाओ क्या लिम्फ लेने के लिए, वो बाकी है ना, बताओ। लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा इजी हो बट आपका कौन सा चलो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी क्या हो गया, और ये हो गया कौन सा लिविंग वर्ल्ड हो गया, उसके बाद आप लोग एक काम भी कर सकते हैं शायद, तो इनके जो नोटबुक है वो कम से कम लिखे तो ले लो, फिर हम बीच में कभी मैम ने ले लिया तो एक्सप्लेन करेंगे। इनमें मैंने सब डिटेल लिख ही दिया है इनको, तो लिख लो पहले। मैम शायद चैप्टर लेने वाले हैं, फिर देखते हैं। ये देखो ना सब लोग, जरा इंसेंट है तुम्हारे पास, जरा इंडेक्स देखो तो आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर्स। नहीं बता दो ना आपको, बॉटनी के कौन से चैप्टर है, जूलॉजी के कौन से हैं। नहीं उसमें देखो तो सही, सर नेक्स्ट पेज। तो लास्ट जो यूनिट है, अरे सुनो लास्ट यूनिट देखा, यूनिट 5 इट इज़ फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी राइट, उसमें से हमने हाँ नहीं इनको नए लोगों के लिए, तो उसमें देखो हमने इस कौन सा चैप्टर लिया है, हाँ तो उसके बाद वाला कौन सा है, हाँ तो वो लेने वाले हैं राइट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड, हाँ वो भी है, कौन सा भी ले सकते हैं आपको, कोई भी ले लो, ये सब फिजियोलॉजी। उसके बाद देखो कौन सा है, लोकोमोशन यानी बोन्स के लिए नेक्स्ट, उसके बाद और उसके बाद केमिकल। इधर आ जाओ अभी, आप यहाँ देखो एक 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम, तो पहले जो 3 है वो बॉटनी के पार्ट है, वो मैम लेंगे, प्लांट किंगडम वगैरह, अपना एक चैप्टर उधर बाकी कौन सा है, एनिमल किंगडम। उसके बाद देखो हाँ उसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वो बॉटनी पार्ट है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टिश्यूज़ वगैरह है नए लोगों के लिए, टिश्यू मतलब एपिथेलियल टिश्यू वगैरह, फ्रॉग और कॉकरोच है, ये 3 मिक्स है उसमें। उसके बाद देखो हाँ सेल साइकिल है और बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल मैं ले लूँगा, बाकी शायद मैम ले लेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर देखो कौन से, ये पूरा प्लांट कौन सा, फोटोसिंथेसिस, हाँ उसमें से जस्ट एक नोट कर दो, खाली हाँ एक जस्ट मेंशन कर दो, बता दो आपको 12th में कौन से चैप्टर है इसमें से। नेक्स्ट पेज जाओ, चैप्टर देखो सारे देखो, चैप्टर नंबर 13 देखो कौन सा है, हाँ ये आपको 12th में लिख दो उधर, 12th करके, 12th बोर्ड में है, ये आपको 12th बोर्ड में रहेगा, मेंशन करो तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद ब्रीदिंग चैप्टर नंबर 14 वो भी 12th में, 12th बोर्ड, सर्कुलेशन तो है ही, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वो भी 12th बोर्ड। समझ रहा ना सबको, हाँ सेम नहीं, नेम थोड़ा सा अलग है, उन्होंने एक ही चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ऐसे करके 2 चैप्टर मिक्स कर, नहीं रुको अभी और है ना, अरे रहेगा। और कौन सा है, एक्सक्रीटरी नहीं वो 11th में, उसके बाद वो भी नहीं है, हाँ लास्ट के 2 न्यूरल और केमिकल वो 12th बोर्ड में।